یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ذرا لمحہ کھر کے لیے دل کو خاموش کیجیے. سوچئے، اگر آپ کی زندگی کے سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری تنہائیاں ختم ہو جائیں اور آپ آنکھ کھولتے ہی سامنے ایک ایسا دروازہ دیکھیں جو روشنی اور سونے سے بنا ہو، اتنا حسین کہ روح کانپ اٹھے، اس کے پیچھے نہریں بہہ رہی ہوں، فرشتے آپ کے نام سے آپ کو بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں داخل ہو جاؤ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کیا آپ نے کبھی دل سے سوچا ہے کہ جنت کا پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ وہاں کی گھاس کی خوشبو کیسی ہوگی؟ وہاں کا پانی کس طرح بہتا ہوگا؟ وہاں کے محلات، وہاں کے باغات اور وہاں اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کا منظر کیسا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں دل کانپے گا، آنکھیں نم ہوں گی، مگر دل سکون اور امید سے بھر جائے گا. یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر لمحہ آپ کو جنت کے قریب لے جائے گا اور آخر میں آپ کو وہ حقیقت سنائی جائے گی جو سب سے بڑی خوشخبری ہے. آئیے چلتے ہیں اس دروازے کی طرف جہاں ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے. یہ لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کیجئے. ذرا تصور کیجئے، دنیا کی گرد و غبار ختم ہو چکی ہے، ڈریڈ فل، خوف، آنسو سب ختم ہو گئے. آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ایک دروازہ ہے جو سونے اور نور سے بنا ہے، اتنا حسین کہ روح کانپ اٹھتی ہے. اس کے پیچھے سے کہکہوں کی آوازیں بہتی، نہریں اور ایک آواز آ رہی ہے جو آپ کو آپ کے نام سے پکار رہی ہے، داخل ہو جاؤ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. آپ کے سامنے ایک دروازہ ہے جو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، روشنی اور سونے سے تراشا ہوا. اس کی خوبصورتی انسان کے تصور سے بھی ماورا ہے. یہ محض ایک دروازہ نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، ایک ایسا دروازہ جس کے اندر کبھی کسی دل کو ٹوٹنا نصیب نہیں ہوگا. جنت کے فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، ان کے چہرے صبح کے سورج کی طرح روشن ہیں، ان کی آوازیں ایسے ہیں جیسے ہوا نرم لہروں پر چلتی ہو. وہ پکارتے ہیں سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ کہ تم پاک کر دیے گئے ہو. اور دروازہ کھل جاتا ہے. جنت میں پہلا قدم ایسا ہے جو دنیا کے ہر قدم سے مختلف ہے. آپ کے پاؤں ٹھنڈی نرم گھاس میں دھس جاتے ہیں جو زمرد سے بھی زیادہ سبز اور ریشم و بادنوں کی طرح نرم ہے. زمین سے خوشبو اٹھتی ہے جو کستوری سے بھی زیادہ میٹھی اور ماں کی گود کی خوشبو سے بھی زیادہ سکون بخش ہے. آگ کے اوپر ایک آسمان ہے جس میں نہ سورج ہے نہ چاند، بلکہ اللہ کے نور سے جگمگاتا ہوا سنہری اور چاندی کے رنگوں میں نہایا ہوا ہے. ہوا تازہ چشمے کے پانی جیسی ہے، ہر سانس راحت بھرا. پھر آپ سنتے ہیں ایک ندی بہہ رہی ہے جو چمکتے کنکروں پر بہتے ہوئے سرگوشیاں کرتی ہے. آپ اس آواز کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ نہری دیکھتے ہیں جن کا قرآن نے وعدہ کیا تھا. پانی کی نہریں، بالکل صاف اور خالص دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا. شہد کی نہریں جو بالکل پاکیزہ ہیں اور شراب کی نہریں جو میٹھی ہیں اور جن میں کوئی گناہ نہیں. یہ سب نہریں عرش الہی سے نکلتی ہیں اور جنت میں نور کی رگوں کی طرح پھیلتی ہیں. جنت ایک باغ نہیں بلکہ باغوں کے اندر باغ ہیں، ہر ایک پچھلے سے زیادہ دلکش. ایسے درخت ہیں کہ ایک سوار ان کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے. ان سے ایسے پھل لٹک رہے ہیں جو فانوسوں کی طرح ہیں
اور जिन्हें आपने दुनिया में कभी नहीं देखा। फिर एक खादिम आपके करीब आता है, जन्नत का एक नौजवान जिसके चेहरे पर चांद जैसी रोशनी है। वो मुस्कुराकर आपको शबनम से तर फलों की प्लेट पेश करता है। आप एक लुक्मा लेते हैं और उसका जायका वो सभी मिठास है जो आपने कभी पसंद की, मगर इससे भी बेहतर जो आपके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन्नत में वो चीजें हैं जो न किसी आंख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी हैं, और न किसी दिल ने कभी सोचा है। वहां हर जायका, हर आवाज, हर मंजर नया है, कामिल है और हमेशा के लिए है। दूर आप महल्लात देखते हैं जो बादलों की तरह तैर रहे हैं, जिनकी दीवारें सोने चांदी और क्रिस्टल की बनी हैं। जन्नत में आपका घर आपका मुंतजिर है, और ये छोटा, ये नाजुक नहीं है, ये बिल्कुल वही है जिसकी तुम्हारी रूह हमेशा से आरज़ूमंद थी। दरवाजे खुलते हैं और अंदर की रोशनी बाहर से भी ज्यादा रोशन है। रेशमी पर्दे हवा के झोंके से लहराते हैं जो जन्नत की खुशबू लिए हुए है। दीवारों में जवाहिरात जुड़े हुए हैं और छत पर रोशनी पानी की तरह बहती है। तुम्हारा बिस्तर ऊंचा रखा गया है, सुनहरी धागों से बनी रेशम से ढका हुआ, इतना नरम कि आराम अल्लाह की रहमत में तैरने जैसा महसूस होता है। और हर घर बागात से घिरा हुआ है, जहां फूल कभी नहीं मुरझाते और नहरें सुकून की सरगोशियां करती हैं। फिर तुम एक आवाज सुनते हो, कह कहे। तुम पलटते हो और अपने घर वालों को देखते हो, अपने दोस्तों को, उनको जिनके साथ तुमने नमाज पढ़ी, जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाते रहे, जो तुमसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे। वो सब जवान हैं, सेहतमंद हैं, रोशन हैं। दुनिया का हर दर्द खत्म हो गया है, ना कोई बीमारी है, ना गम, ना मौत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो ना बूढ़े होंगे, ना उनके कपड़े पुराने होंगे, और ना उनकी जवानी कभी खत्म होगी। तुम उनकी तरफ दौड़ते हो, उन्हें गिले लगाते हो, खुशी के आंसू बहाते हो जो सिर्फ मसरत के आंसू हैं। एक फरिश्ते की आवाज आती है, तुम कभी जुदा नहीं होगे। हर जुमा जन्नत के लोग एक वसी मैदान में जमा होते हैं, रोशनी और खूबसूरती का बाजार लगता है। वहां ना सके हैं, ना कीमत, ना बोझ। तुम जो चाहो ले सकते हो और फरिश्ते तुम्हारे लिए उठा लेते हैं, और कभी कुछ खत्म नहीं होता। वहां तुम अंबिया और शुहदा को देखते हो, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो, और हर चेहरा मुस्कुराहटों से रोशन होता है। ये बाजार हर हफ्ते बदलता है, और हर बार का जाना तुम्हें पहले से ज्यादा हुसैन बना देता है, जैसे हर तुलुआ आफताब के साथ फूल ज्यादा खिलता है। जन्नत में ना रात है, ना फिक्र, ना भूख, ना खौफ, सिर्फ सुकून, खुशी और लामहदूद जस्तजू है। तुम नहरों में तैरते हो बगैर थके, तुम परवाज करते हो अगर चाहो अपनी मर्जी और अल्लाह की रहमत से। हर लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है, और वक्त वहां मौजूद ही नहीं। लेकिन एक लम्हा ऐसा है जो हर नेमत को छोटा कर देता है। एक दिन एक फरिश्ता पुकारेगा कि पूरी जन्नत जमा हो। तुम रोशनी की वादी में जाते हो, जहां अल्लाह का अर्श उफुक तक फैला हुआ है। फरिश्ते सफ़े बांधते हैं, उनकी आवाजें आसमानी गरज की तरह हैं जो पुकारते हैं, सलाम सलाम सलाम। और फिर एक रोशनी उतरती है जो पूरी जन्नत से ज्यादा रोशन है, और अल्लाह तुमसे बराह रास्त कलाम करता है, ए मेरे बंदे, क्या तुम राजी हो? तुम सजदे में गिर जाते हो, खुशी के आंसू जन्नत की घास को भिगो देते हैं, और वो फरमाता है, तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी चीज अता करता हूं। मैं तुम्हें अपनी रजा अता करता हूं, और अब कभी तुमसे नाराज ना होऊंगा। और फिर तुम देखते हो सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का दीदार। सूरज से ज्यादा हुसैन, हर खुशी से ज्यादा महबूब जो तुमने कभी महसूस की। ये लम्हा हमेशा के लिए कायम रहता है, क्योंकि जन्नत हमेशा तुम्हारा है। ये है जन्नत, ये हकीकत है। इस जात का वदा है जो कभी वदा खिलाफी नहीं करता।
ये दौलत से नहीं खरीदी गई, ये गुरूर से नहीं कमाई गई, ये जिदोजहद से मिली है, रात के आंसुओं से, दिल के जख्मों से, खामोशी में सब्र से। हर सजदा शुमार हुआ, हर दुआ लिखी गई, हर लम्हा जब तुमने गुनाह से मुंह मोड़ा, इसने तुम्हारे लिए यहां एक दरवाजा बनाया। तो हिम्मत मत हारो, इसे दुनिया के बदले मत बेचो। एक और खालिस दुआ, एक और रोजा, एक और बार हराम को ऊना ऊ कहना तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल तामीर कर सकता है। कोई जान नहीं जानता कि उनके लिए कैसी खुशियां छपी हैं बतौर इनाम उन अमाल के बदले जो वो किया करते थे। दुनिया को पीछे जलने दो, सरगोशियों को मिटने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है वो तसव्वुर से भी बालातर है। तुम्हें सिर्फ रास्ता चलना है। आज का ये पैगाम हमें ये याद दिलाता है कि एक और दुआ, एक और नेक अमल, एक और बार गुनाह से बचने की कोशिश हमारे लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जन्नत के बारे में सुनकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए जन्नत, आखिरत और ईमान से जारी ऐसे ही रूपरवर मौज़ूआत पर मजीद वीडियोस बनाएं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली रोशनी भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको इस जन्नत में इकट्ठा करे जहां कभी जुदाई नहीं। आमीन।